My left hand थोड़ा पेन कर रहा है. I have not reached पीर की गली yet. This is Kashmir Roots for you, and I bring to you this amazing series. So I have started the ride from Srinagar. I'm going to a place जिसे I think Dubjan या Drubjan, something like that. I'll mention the name properly in the caption. So I'm going to that offbeat place in Shopian. It's in Shopian, and even मैं Shopian भी first time जा रही हूँ. Not been there before, and the weather today is too good. But इस मौसम पे भरोसा नहीं किया जा सकता because it's been raining since last week. Sometimes sunny, sometimes cloudy, but till now it's all good, and it's 12 in the afternoon right now. So how I'm feeling right now, my left hand थोड़ा पेन कर रहा है. I don't know why it always happens with me, but शायद धीरे धीरे I'll get used to it. Welcome to Shopian, जिसे एप्पल टाउन भी कहा जाता है, and यहाँ के apples are very famous all around the world. Delicious, tasty, red, and whatnot. I have layered up myself with a sweater, but the weather it's playing hide and seek today. मेरे को थोड़ी सर्दी लग रही है. मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ से शोपियान साइड से. वेदर थोड़ा सा cloudy है. I hope it doesn't rain today at least, because it's been raining since last 7 days. And हाँ ठीक है, थोड़ी ठंड लग रही है, but मैनेज हो सकती है because हम enjoy राइड कर रहे हैं. So अभी शोपियान के थ्रू ही राइडिंग towards my location, which is an offbeat place today. So let's see कि कैसा रहता है आज का दिन. बस यही है जिसके लिए I started riding for these amazing views, man. दिल खुश हो गया. Every second जब आप राइड कर रहे होते हो, stupid. Okay, every second you're riding on your bike, throttling through unknown roads. That feeling is just amazing, man. I don't know why मैं बहुत ज़्यादा excited हो रही हूँ, like a kid. And the road, it's good. साइड से हमारे एप्पल ट्रीज और सामने बर्फीले पहाड़, खुले रास्ते. This is Kashmir Roots for you, and I bring to you this amazing series जहाँ पे I'm gonna explore different offbeat, unknown, known locations. I'm gonna explore Kashmir on my two-wheeler, and बहुत मज़ेदार सीरीज़ रहने वाले हैं. I'm gonna take you on rides with me and my Mastani. Okay, well मैंने मेरी बाइक का नाम finally रख दिया है. And why Mastani? There's a story behind that, and I'll share with you. And if you're not following me on my Instagram and you don't want to miss on updates, do follow me on my Instagram and do subscribe for amazing travel related videos across Kashmir. That was a close call. Just look at the view, man. कितनी खूबसूरत पहाड़ है, बर्फ से ढके हुए, and wide open roads. ये सब आपको अपने comfort zone में तो नहीं मिलेगा. ये सब देखने के लिए you need to get out of your comfort zones and explore around. Not necessarily बहुत दूर तक, a short distance, कोई भी जगह. So पीछे एक बोर्ड लगा था saying that welcome to हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. So मैं जिस लोकेशन पे जा रही हूँ, that's an offbeat location. So वहाँ से मालूम पड़ता है कि I'm on my right way, मैं सही रास्ते पे हूँ. एंड कश्मीर में एक बहुत अच्छी सी चीज़ जो है वो ये है कि wherever you go, whichever place you visit ना, you go through mountains, different views, forest areas, and that's what makes your journey, your ride more beautiful. क्योंकि जो नज़ारे आपको जंगलों में, पहाड़ों पे मिलते हैं ना, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकते.
वहाँ से वो पूरा पहाड़ खिसक के नीचे आ गया है, लैंडस्लाइड वाला। सो स्केरी टू सी। और जिस लोकेशन पे मुझे जाना है दैट्स दुबजन, एंड पीछे बोर्ड लगा हुआ था दैट इट्स ओनली 4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस। ये लैंडस्लाइड आया था यहाँ पे जिसको क्लियर किया गया है। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी कल तक। आज थोड़ी धूप निकली है बट थोड़े थोड़े बादल तो है अभी भी। तो यहाँ से मेरी लोकेशन इज़ जस्ट 4 किलोमीटर्स अवे, बट रोड थोड़ा डेंजरस ही लग रहा है आज बिकॉज ऑफ रीसेंट रेन्स। लोग यहाँ पे सेल्फीज फोटोज सब कुछ खींच रहे हैं। इट्स एक थोड़ा सा स्पॉट है यहाँ पे, बट आगे का व्यू इज़ अमेजिंग। बहुत अच्छा व्यू है। ओके, यहाँ से पीछे हमें जो बर्फ़ वाले पहाड़ मिल रहे हैं, ये हमारी राइड को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं बिकॉज़ राइड करते टाइम यू गेट टू सी सच ब्यूटीफुल व्यूज़, तो मज़ा ही आ जाता है। सो मैं पहुँच चुकी हूँ दुबजन ब्रिज पे। द लोकेशन फॉर टुडे, just stopped at this place in the middle of somewhere. पीछे दुबजन ब्रिज है and me and my ride मस्तानी are together on this ride. ये हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे जो व्यू है it's more of rocky, बहुत सारे पत्थर है and हमें रास्ते में बहुत छोटे छोटे waterfalls देखने को मिले and the view looks like this and this is my ride. पेड़ पत्थर सब कुछ निकल के रास्ते पे आ गए हैं। आई थिंक इट वुड हैव बीन डेंजरस येस्टरडे यहाँ से राइड करना। और वहाँ दूर थोड़ी बहुत बर्फ़ भी है अभी। इट्स अप्रैल, तो यहाँ से मौसम थोड़ा ठंडा ही रहता है। दिस लाइफ आई मीन लाइक मैंने काफ़ी टाइम पहले मैनिफेस्ट की थी एंड टुडे 2026 में आई एम लिविंग इट। आई मीन लाइक अगर आप कुछ भी चाहते हो करना, आपका कोई भी पैशन है, अगर आप उसके लिए काम करते हो ना, यू वर्क फॉर इट, देर सवेर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि एकदम से होगा। इट टुक मी अराउंड 8 years टू रीच हियर। 8 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में। और आगे आई कैन सी काले बादल, इट्स गोइंग टू रेन एंड आई प्रे कि बारिश ना हो because yeah, I have a raincoat, but still I don't want to ride through these routes during the rain because it becomes kind of risky. But काले बादल तो बहुत दिख रहे हैं। वाले साइड ऑफ रोड गई तो वहाँ से अलाउ नहीं किया जस्ट बिकॉज द वेदर वॉज नॉट गुड। बट सबसे पहले लुक एट द व्यू मैन, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, माशाल्लाह बारकल्लाह। सो वहाँ से वेदर अच्छा नहीं था और थोड़ी थोड़ी बारिश तो ऑब्वियसली स्टार्ट हो गई है। रास्ते में दीज बाइकर्स, ओके, तो आई डिसाइडेड दैट आई विल गो टूवर्ड्स पीर की गली, जो कि उस वाली लोकेशन से जस्ट 20 किलोमीटर्स अवे है एंड ऑलरेडी 1 किलोमीटर मैं क्रॉस कर चुकी हूँ। सो पीर की गली जाती हूँ एंड लेट्स एक्सप्लोर पीर की गली एज वेल। तो पीर की गली भी मैं पहली बार ही जा रही हूँ, आई हैव नॉट बीन देयर बिफोर। सो तो इस रूट पे काफ़ी सारे बाइकर्स हैं जो शायद टूवर्ड्स पीर की गली जा रहे हैं। इट्स गुड, अभी सीज़न स्टार्ट ही हुआ एंड पीपल आर रशिंग टूवर्ड्स दीज प्लेसेस। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी लास्ट 5 पे एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, बट यहाँ से व्यू बहुत मज़ेदार है। ओके, तो मुझे लगता है काले काले बादल किसी किसी पैच पे एंड वहाँ पे बारिश हो रही है। सो आई एम 17 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पीर की गली।
हैव नॉट रीच्ड पीर की गली येट, बट ऑलरेडी बर्फ़ का तूफान देखने को मिला। ओह माय गॉड, थोड़ी सी बर्फ़ हो रही है विद सम फॉग, और here it is the view, कुछ तो दिख रहा है। मुझे जाना था पीर की गली, एंड लास्ट क्लिप के बाद इतना ज़्यादा तूफ़ान शुरू हुआ ना वहाँ पे, इतना ज़्यादा बर्फ़ का तूफ़ान, फिर उसी के साथ ओले शुरू हो गए, तो आई टुक अ यू टर्न। मैं आगे नहीं जा पाई बिकॉज़ मुझे नहीं पता थी कि आगे कैसा मौसम मिलता या आगे क्या सीन होता, रास्ता बंद होता, क्या होता। मैं अभी दोपजन वापस पहुँची हूँ, एंड यहाँ पे इतनी अच्छी धूप निकली हुई है ना, और ऊपर इतना गंदा बर्फीला तूफ़ान आया। इट्स लाइक अनप्रिडिक्टेबल, एक लोकेशन पे एक मौसम, दूसरी लोकेशन पे दूसरा। ये मेरी मस्तानी खड़ी है, और दिस इज़ द व्यू जिस लोकेशन पे मैं अभी हूँ। तो ऑफ रोड जंगल का तूफ़ान, सॉरी जंगल का नहीं, बर्फ़ का तूफ़ान, जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़, a day worth everything. एक दिन में बहुत कुछ देख लिया, एंड अभी आई एम गोइंग बैक टूवर्ड्स होम। मैं अभी शोपियान से अराउंड 17 किलोमीटर्स दूर हूँ, तो शोपियान पहुँच के सीधा घर की ओर, घर से मैं अराउंड 100 किलोमीटर्स अवे, 120। ऐसा लग रहा है कि एकदम तेज़ बारिश हुई है अभी अभी, और उस साइड पे बादल है और रोड गीली है, तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ से छोटा मोटा सा वाटरफॉल है। आते टाइम यहाँ पे लोगों ने सेल्फ़ी पॉइंट बना दिया था, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सेल्फीज़ खींच रहे थे। और आगे से धूप निकली हुई है, पूरी सड़क भीगी हुई है। बारिश तो हुई है यहाँ से, मैं तो ऊपर से बर्फ़ के तूफ़ान से निकल के आई हूँ। वेल, नॉट दिस टाइम, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल गो टू पीर की गली, इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी, बिकॉज़ जाना तो है उस पॉइंट तक। अभी जाना पॉसिबल नहीं था, एंड आई थॉट इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा वेदर भी अच्छा होगा, और अभी आगे समर सीज़न आ रहा है, तो यहाँ से बहुत लैंडस्लाइड्स हुए हैं। समर सीज़न आ रहा है तो बहुत ज़बरदस्त मौसम होगा। अभी आई एम गोइंग टूवर्ड्स पामपुर से फिर सीधा घर की ओर, श्रीनगर की ओर। पामपुर शोपियान से अराउंड 20 किलोमीटर दूर है, so it's a 20 kilometer ride, then another 25 kilometers towards Srinagar. बैक टू सिटी, और सिटी में है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम, बहुत गंदा ट्रैफिक जैम। मैं आके फंसी हूँ। मैं आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होगा। इतनी ज़्यादा भीड़, आई डोंट नो इस रूट पे इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है आज। मैं दूसरे रूट से जाना चाहती थी, मैं डल गेट वाले रूट से इधर का। देन आई थॉट कि नहीं, हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट उल्टा था, यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक मिली। मेरा रिस्ट बहुत पेन कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, क्या हो गया। मेरे रिस्ट में दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्लच प्रेस करने से इट्स पेनिंग, एंड इट्स स्टिल आई एम स्टिल अवे फ्रॉम होम। बहुत दर्द कर रहा है मेरा रिस्ट। आई होप कि मैं घर तक अच्छे से और जल्दी पहुंच जाऊं। एंड इट्स दैट्स इट फॉर द डे। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग देख के मज़ा आया होगा, एंड अगर आपने पहली बार इस जगह का नाम सुना है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड लेट मी नो कि आप नेक्स्ट कौन सी जगह देखना पसंद करोगे, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस जो मुझे नहीं पता, जो आपको नहीं पता। जो मुझे पता है वो मैं आपको दिखाऊंगी, जो आपको पता है वो आप मुझे बताओ, एंड आई गो एंड ट्राई टू एक्सप्लोर दैट प्लेस। सो सी यू next time. Till then, take care. Bye bye.